بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ہارڈ ڈسک. اس کا کچھ انٹروڈکشن میں نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ ہارڈ ڈسک ایک سیکنڈری سٹوریج ڈیوائس ہے جس میں ڈیٹا پرماننٹلی سٹور ہوتا ہے اور یہ نان وولٹائل ہوتی ہے. نان وولٹائل کا مطلب ہم کمپیوٹر کو آف بھی کر دیں اس کے اندر پڑا ہوا جو ڈیٹا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. آج اس کا مزید تھوڑا سا جو سیکنڈ ریمیننگ پارٹ ہمارا رہتا تھا وہ انشاءاللہ آج میں کراؤں گا ڈیٹا آرگنائزیشن. کہ ہارڈ ڈسک پہ ڈیٹا آرگنائز کیسے ہوتا ہے, جو سٹور ہوتا ہے وہ کیسے سٹور ہوتا ہے, کس فارم میں ہوتا ہے, اسے کیسے ترتیب دی جاتی ہے, اس کی آرگنائزیشن کیسے ہوگی. یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کل کے لیکچر میں ہمارا ہو چکا ہے کہ ہارڈ ڈسک میں جتنا بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ سارا پلیٹرز پہ ہوتا ہے. پلیٹرز کیا ہے؟ میٹل کی بنی ہوئی گول گول ڈسکس ہوتی ہیں جنہیں پلیٹرز کا نام دیا جاتا ہے. پلیٹرز سرکولر ڈسکس ہوتی ہیں انسائڈ ہارڈ ڈسک. اب ہارڈ ڈسک کی ایک کیسنگ سی بنی ہوئی ہے. اس کیسنگ کو اگر ہم اوپن کریں تو ہارڈ ڈسک کا سرکٹ بورڈ اور وہ میٹل کی بنی ہوئی جو پلیٹرز ہیں وہ ہمیں اس کیسنگ کے اندر نظر آئیں گی. تو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سارے کا سارا ڈیٹا انہی پلیٹرز پہ سٹور ہوتا ہے. اور کل میں نے سملیرٹی دی تھی کہ یہ پلیٹرز ہوتی کیسی ہیں. جس طرح سی ڈی ہم دیکھتے ہیں, سی ڈی تو پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے. سی ڈی کی طرح گول گول ڈسکس ہیں جو میٹل کی بنی ہوئی ہیں. تو اس کی ایک لاجیکل شیپ اگر ہم بنا لیں تو اس طرح کی گول گول ڈسکس ہے. اب ان میں ڈیٹا آرگنائز کیسے ہوتا ہے؟ ڈیٹا آرگنائزیشن ہمارا ٹاپک ہے کہ ہارڈ ڈسک میں ڈیٹا کیسے سٹور ہوگا, کیسے آرگنائز ہوتا ہے. تو یہ گول گول پلیٹرز ہیں. ان میں کل میں نے بتایا تھا کہ سرکل بنے ہوئے ہیں. ان سرکلز کو ٹریکس کہتے ہیں. ان سرکلز کو ٹریکس کا نام دیا جاتا ہے. ہر ٹریک 8 سیکٹر میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے. 3 4 5 6 7 اینڈ 8. سیکٹر کیا ہے؟ یہ جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ ایک سیکٹر ہے. تو جتنا بھی ڈیٹا ہارڈ ڈسک کے اندر آرگنائز ہوتا ہے, سٹور ہوتا ہے, وہ کس فارم میں ہوتا ہے؟ ٹریکس اینڈ سیکٹرز کی فارم میں. ٹریک اینڈ سیکٹر کدھر بنے ہوتے ہیں؟ ہارڈ ڈسک کی جو پلیٹرز ہیں اس کے اوپر. اور یہ لاجیکل ہوتے ہیں, یہ ہمیں بظاہر سامنے نظر نہیں آتے. لاجیکل اس کی جب فارمیٹنگ ہم کرتے ہیں تو اس کی پلیٹر کی سرفیس کے اوپر ٹریکس بھی بنیں گے اور سیکٹر بھی بنیں گے جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو سارا ڈیٹا انہی ٹریکس اور سیکٹرز کے اندر سٹور ہوتا ہے. ایک سیکٹر میں 512 بائٹ ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. 512 بائٹس. ایک سیکٹر میں کتنا ڈیٹا سٹور ہوتا ہے؟ 512 بائٹس. ہارڈ ڈسک کی پلیٹر پہ جو ٹریک اور سیکٹر بنے ہوتے ہیں, ایک سیکٹر کے اندر 512 بائٹس ڈیٹا سٹور ہوتا ہے. تو جتنی پھر ہارڈ ڈسک کی کیپیسٹی زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ اس پہ ٹریک اور سیکٹر بنیں گے, اتنا ہی زیادہ ڈیٹا اس میں سٹور کیا جا سکتا ہے. تو ایک سیکٹر میں 512 بائٹس. اب یہ ٹریک اور سیکٹر بنتے کیسے ہیں؟ کل بھی میں نے بتایا ٹریک اور سیکٹر ایک پروسیس ہے جس سے بنتے ہیں. اس پروسیس کو فارمیٹنگ بولا جاتا ہے. فارمیٹنگ کی ڈیفینیشن بتائی کہ فارمیٹنگ از اے پروسیس that marks
tracks and sectors on platter. फॉर्मेटिंग एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से प्लेटर्स के ऊपर क्या मार्क होते हैं, ट्रैक और सेक्टर मार्क होते हैं, ट्रैक और सेक्टर बनते हैं। तो फॉर्मेटिंग एक अमल है जिसकी मदद से इसकी प्लेटर के ऊपर ट्रैक और सेक्टर बनते हैं। तो जितने का जो भी सारे का सारा डाटा इन प्लेटर्स के ऊपर स्टोर होता है वो ऑर्गेनाइज होगा ट्रैक्स और सेक्टर में। जो मेजर इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली, एक सेक्टर में कितना डाटा स्टोर होता है, 512 बाइट्स। फिर हर ट्रैक को एक एड्रेस मिला होता है। मेन मेमोरी के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, हर कंपोनेंट को कोई ना कोई एड्रेस मिला हुआ होता है। इसी तरह ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं इनको भी एड्रेस मिला होता है। किस तरह से? ये जो सबसे पहले वाला ट्रैक है, जो पहला ट्रैक है, ये आगे डेफिनेशन भी आएगी, इसको एड्रेस मिला होता है 000। इस 0 एड्रेस की वजह से इस ट्रैक को कहते हैं 0 ट्रैक। इस हार्ड डिस्क के टॉपिक के अंदर डेफिनेशन आएगी। 0 ट्रैक क्या होता है कि जो प्लेटर के ऊपर जो सबसे पहला ट्रैक होता है जिसका एड्रेस 000 होगा, उस ट्रैक को 0 ट्रैक कहा जाता है। प्लेटर के ऊपर जो पहला ट्रैक है जिससे एड्रेस मिला होता है 000, उसे कहा जाता है वो 0 ट्रैक है, वो 0 ट्रैक है। तो 0 ट्रैक की डेफिनेशन आगे लिखी, लेकिन जो पहला ट्रैक होगा जिसका एड्रेस 000 होता है उसे 0 ट्रैक कहते हैं। अब 2 डेफिनेशन है, ये शुरू में बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी प्लेटर की जो लॉजिकल शेप है इसी से हम वो 2 डेफिनेशन आगे मजीद उन्हें कैरी करेंगे। फर्स्ट, डाटा रेट। ये जहां से आपका हार्ड डिस्क का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें पहली हेडिंग है कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस। उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ, उसके नीचे पहली जो डेफिनेशन आ रही है वो है डाटा रेट। अब ये डाटा रेट क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो डाटा और प्रोग्राम हमने कंप्यूटर पे यूज करने होते हैं हम उन्हें स्टोर कर देते हैं। स्टोर किधर करते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर। अब जिस एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे वो तो पहले मेन मेमोरी पे लोड होगी, फिर ओपन होगी। और कुछ प्रोग्राम, अब अगर हार्ड डिस्क में 100 एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, 100 प्रोग्राम पड़े हुए हैं, एट अ टाइम हम 100 के 100 को तो ओपन नहीं करते, उनमें से 5, 6, 7 ओपन होंगी। जो 5, 6, 7 ओपन है वो मेमोरी के अंदर लोड होती हैं, फिर सीपीयू ने प्रोसेस करके चला देता है। तो जो यूज होने वाले प्रोग्राम नहीं है, 100 मैंने बताया 7, 5, 7 मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी यूज होने वाले प्रोग्राम नहीं है। वो किधर स्टोर होते हैं? वो सारे के सारे हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं, सारे के सारे हार्ड डिस्क में। ऐसे तमाम प्रोग्राम जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, जो भी डाटा हमने कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है, जिसको हमने फ्यूचर में 10 दिन के बाद जरूरत पड़ने पे हमने इस्तेमाल करना है या जब कभी भी इस्तेमाल करना है, वो सारे के सारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं। और वो चूंकि ओपन नहीं है तो मेमोरी में लोड नहीं होंगे। जब भी हमें किसी प्रोग्राम को चलाने की जरूरत पेश आती है तो हम क्या करते हैं? उसके आइकन पे डबल क्लिक करते हैं। जब डबल क्लिक होता है तो वो पहले मेमोरी में लोड होगा, फिर सीपीयू तक जाएगा। वो जो डायग्राम बनाकर मैंने एक स्ट्रक्चर सा बताया था, फिर ये बताया था कि सीपीयू मेमोरी से डाटा कैसे लेता है और मेमोरी की तरफ डाटा भेजता कैसे है। फिर कल मैंने एक बात बताई थी कि हार्ड डिस्क से डाटा रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। हार्ड डिस्क से डाटा लिया भी जा सकता है, हार्ड डिस्क की तरफ डाटा भेजा भी जा सकता है। तो हार्ड डिस्क से डाटा सीपीयू लेगा कैसे? जब हम किसी प्रोग्राम को चलाएंगे तो चूंकि वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, वहां से ट्रांसफर होगा सीपीयू की तरफ वाया मेन मेमोरी ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा? कितने नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर होंगे? 10 बाइट होंगे, 100 होंगे, लाख होंगे, 5 लाख
वही डाटा रेट है। डाटा रेट के ड्राइव से, हार्ड डिस्क ड्राइव से कितने बाइट डाटा एक वक्त में सीपीयू तक जो जाएगा वही डाटा रेट है। डाटा पड़ा हुआ है हार्ड डिस्क में, उसे चलाना किसने है, प्रोसेस किसने करना है, सीपीयू ने। तो जब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो वो सीपीयू तक तो जाएगा, हार्ड डिस्क से सीपीयू तक जाएगा तो चलेगा। तो डाटा रेट क्या है कि जब प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से हम क्लिक करके चलाएंगे तो कितना वो डाटा, कितने नंबर ऑफ बाइट्स वो सीपीयू को भेज सकता है। जितना ज्यादा डाटा रेट होगा उतनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, क्योंकि उतना ज्यादा डाटा सीपीयू तक जाएगा, और जितना ज्यादा डाटा सीपीयू तक जाएगा उतना ही ज्यादा डाटा प्रोसेस भी होगा। तो डाटा रेट क्या है, द नंबर ऑफ बाइट्स ऐसे लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ डाटा that the drive can deliver to CPU is called data rate। कि कितना डाटा ड्राइव सीपीयू तक डिलीवर कर सकती है, कितना डाटा, 5 MB पर सेकेंड, 10 MB पर सेकेंड, 20 MB पर सेकेंड, क्योंकि सीपीयू तक जाएगा तो प्रोसेस होगा तभी वो चलेगा। तो वो नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट्स, कितनी अमाउंट ऑफ डाटा हार्ड डिस्क ड्राइव सीपीयू तक एक वक्त में भेज सके, वही डाटा रेट कहलाती है। और अमूमन हार्ड डिस्क का जो हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो चूंकि हम बाउंड है किताब के अंदर टेक्स्ट बुक में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए हैं, जो डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं, हमने वो याद करनी है। तो लेटेस्ट हार्ड डिस्क का जो डाटा रेट है वो तो इससे ज्यादा है, लेकिन उस हमारे सिलेबस के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें ये है कि एक हार्ड डिस्क का नॉर्मली डाटा रेट होता है 5 MB पर सेकेंड टू 40 MB पर सेकेंड। कि एक हार्ड डिस्क का जो डाटा रेट है वो 5 MB पर सेकेंड से लेकर 40 MB पर सेकेंड तक हो सकता है। तो ये डाटा रेट है। सेकेंड डेफिनेशन है सीक टाइम। अब सीक टाइम क्या है, मसलन रीड एंड राइट हेड, कल मैंने आपको बताए थे कि एक प्लेटर पे 2 रीड एंड राइट हेड होते हैं, एक ऊपर वाली सरफेस पे और एक नीचे वाली सरफेस पे। इनका काम क्या है, हार्ड डिस्क की प्लेटर से डाटा लेना और उसकी तरफ डाटा भेजना। रीड हेड का काम है जो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ डाटा है उसे रीड करना, और राइट हेड का काम है उसमें नया डाटा स्टोर करना। राइट हेड का काम है उसमें नया डाटा स्टोर करना, सेव करना। तो रीड एंड राइट हेड फॉर एग्जांपल इस तरह से ये लगे हुए प्लेटर के ऊपर। तो जब भी किसी बाइट से उसने डाटा लेना है, किसी सेक्टर से डाटा लेना है, तो ये रीड एंड राइट हेड ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं, बड़ी स्पीड से मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से इस ट्रैक से उसने डाटा लेना है, ये वाला, ये तो यहां पे सेक्टर है, तो रीड एंड राइट हेड ऐसे मूव करके इस सेक्टर तक पहुंचेंगे। रीड एंड राइट हेड ये दोनों साइड से मूवमेंट होती है, रीड राइट हेड भी मूव करते हैं, प्लेटर्स भी मूव करती हैं, ताकि कम टाइम में डाटा मिल जाए। तो जितना टाइम लगेगा, यहाँ पर रीड एंड राइट हेड मौजूद है, यहाँ से डाटा उसने रीड करना है, तो जितना टाइम इस ट्रैक को रीड एंड राइट हेड के नीचे आने में लगेगा वो सीक टाइम कहलाएगा। रीड एंड राइट हेड का काम क्या है, प्लेटर से डाटा लेना या उनकी तरफ डाटा भेजना। तो हमने क्या काम करना है, ये इसका जो मैकेनिज्म है जो इंटरनली बताया जा रहा है वो सिर्फ इस बात पे आप गौर करें कि फॉर एग्जांपल यहां से डाटा उसने रीड किया,
फिर यहां से रीड करना है, तो जितना टाइम इस रीड एंड राइट हेड को मूव होकर इस सेक्टर तक, इस ट्रैक या सेक्टर तक आने में लग जाएगा, वो टाइम सीक टाइम कहलाता है। जितना टाइम एक रीड एंड राइट हेड को मूव करके अप्रोप्रिएट ट्रैक के ऊपर आने में लगेगा, वो टाइम सीक टाइम कहलाएगा, वो टाइम सीक टाइम कहलाएगा। तो ये इसकी दो डेफिनेशंस हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हार्ड डिस्क को देखा जाए, हार्ड डिस्क के जहां से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अगले पेज पे अगर आप जाएं तो कुछ उसका स्ट्रक्चर सा लिखा हुआ ये है कैसे, ये बॉक्स की तरह की बनी हुई है, एक केसिंग सी है जिसके अंदर ये सारा उसका मटेरियल लगा हुआ है। कौन कौन सी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हार्ड डिस्क के अंदर, वो एक हार्ड डिस्क का एक सर्किट बोर्ड है। सेकंड, हार्ड डिस्क के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो प्लेटर्स हैं जिन पे डाटा स्टोर होता है। अब प्लेटर्स पे कैसे ट्रैक और सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हार्ड डिस्क के अंदर वो रीड एंड राइट हेड है। इनका फंक्शन आपको आना चाहिए, इनका काम क्या है, डाटा हार्ड डिस्क से लेना या हार्ड डिस्क की तरफ डाटा भेजना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है लेकिन अभी इस्तेमाल में नहीं है, फ्लॉप हो चुकी है एक तरह की फ्लॉप, क्योंकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो उसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फिर हार्ड डिस्क का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसमें जीरो ट्रैक की प्रॉपर वहां पर डेफिनेशन आएगी, वो हम पढ़ेंगे। एक्सेस टाइम क्या होता है वो, और एक छोटा सा टॉपिक सीडी का रह गया है। तो कल इंशाल्लाह ये टॉपिक करके हम इस चैप्टर नंबर 4 को क्लोज करेंगे। थैंक यू सो मच।